हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे एक बार नई फ्रेश एपिसोड में। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी मनचाहा ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे। सो आज पहली बार जो लोग आज चैनल देख रहे हैं, सो वीडियो के अंत तक देखना, उसके बाद सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाले दिन में आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मेरा नाम है कौशल और अभी आप है गोरखा रिएक्शन चैनल पे। सो बाकी सारे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीज़ आपको नीचे मिल जाएगा। जाके चेक इन करिए, वहाँ पे फॉलो करिए और वहाँ पे भी आप वीडियो के लिंक और बहुत सारी चीज़ आपको जो पूछना है वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। सो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले कान में डालिए गोला और टाइटल बोलना भूल गया। सो थंबनेल में देख के तो आपको पता चल गया होगा आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाली है। सो बांग्लादेश द नेक्स्ट राइजिंग टाइगर। सो बांग्लादेश नेक्स्ट राइजिंग टाइगर बनने से कोई रोक तो नहीं सकता है, ये तो जाहिर सी बात है, पता ही सबको। सो दिखते हैं क्या क्या चीज़ें है। सो मैंने भी कुछ कुछ चीज़ लिख के रखी है, सो मैं आपके साथ बाद में लास्ट में शेयर करूँगा। सो उससे पहले देखते हैं वीडियो इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। सो ऐसे बेसिकली हम लोग ने जो 50 ईयर्स ऑफ राइजिंग बांग्लादेश हो गया, उसके बाद 10 ईयर्स ऑफ डिजिटल बांग्लादेश, ये दो वीडियो हमने देख के तो बहुत सारे चीज़ हम लोग को समझ में आ गया है। उसके बाद अब इसमें क्या क्या और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, उसको क्या क्या ऐसे चीज़ हुआ है वहाँ पे और क्या क्या होने वाली है, ये सारे चीज़ में भी हमको जानने को मिलेगा। सो देखते हैं। कान में डाला बोला, काउंट डाउन 3 2 1। बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक आया यार पहले। द फादर ऑफ नेशन शेख मुजीबुर रहमान। A land of natural wonders, colorful festivals, and endless possibilities, Bangladesh has a glorious history of resilience and valor. And the essence of this beautiful land can be found in the life and philosophy of one man, our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Almost 50 years ago, he liberated us from the shackles of oppression, taught us the true meaning of freedom, and envisioned for us a bright, prosperous future. Now, as the whole nation jubilantly celebrates the birth centenary of that greatest Bengali of all time, the future looks brighter than ever for Bangladesh under the prudent leadership of his daughter, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. Thanks to the government's enhanced priority on education, Literacy the rate. last decade has seen the literacy rate jumping 73. to 73%. Enrollment Yeah, in primary बहुत schools ज़बरदस्त। has jumped to almost 100%. Primary school Besides, 97. 14,000 community clinics have brought 14,000 healthcare to the clinic. rural doorstep, rising the average Life lifespan of people to almost expectancy. 73 years. 73 Infant years. mortality has gone down to 31, while maternal mortality rate is now only 1.72 persons Acha. per thousand. For 4 consecutive years, Women Bangladesh empowerment. has been at the top of Gender the South equality Asian सबसे countries बड़ी बात। in ensuring gender equality as per the World Economic Forum ranking. The poverty rate has also decreased from around 40% in 2005 to 20.5% in 2019. In the fiscal year 2018-19, Bangladesh's GDP grew by 8.15%, which is one of the तगड़ी highest in the rate है world. यार ये। At the same time, per capita income has crossed $2,000 from $759 back in fiscal year 2008-9. Our exports have 2000 से grown भी to ऊपर हो गया almost recently का तो। 41 billion US dollars from 15 billion Export US dollars 14 10 years ago. 0.53 Currently, billion. Bangladesh is the second largest exporter of ready-made garments in the world. Meanwhile, our pharmaceuticals, leather products, food processing, and ICT industry are also making their mark at the global stage.
flow of remittance increased from $9.7 billion a decade ago to $16.5 billion in the fiscal year बहुत बड़ी तरक्की है। 2018-19. Flow of foreign direct investment है। has increased by almost 4 times in the last 10 years to reach $3.6 billion. Private sector investment has simultaneously increased by 5-folds in last 13 years, reaching almost $71 billion. Once dependent on food aid, Bangladesh has not only achieved food self-sufficiency, but also emerging as a food exporter. Currently, Bangladesh is the 4th largest producer of rice, 3rd largest producer of vegetables, and the 4th largest producer of freshwater fish in the world. The power generation capacity has increased by 4.5 times to reach 22,329 megawatts. 94% people in the country now have access to electricity. 94%. More than 4,500 Union Digital Centers are bringing digital services to rural doorstep. The total number of mobile phone subscribers has crossed 161 million. Meanwhile, the number of internet users has increased to 96.2 million. After successfully achieving the Millennium Development Goals, Bangladesh is now working relentlessly to attain the Sustainable Development Goals. Bangladesh's unprecedented success is now being recognized by various global entities while earning the country accolades at the world stage. Back in 2015, Bangladesh became a lower middle-income country as per the World Bank classification. Goldman Sachs has identified Bangladesh as one of the next 11 countries that has the potential to become one of the world's largest economies in the 21st century. According to HSBC, Bangladesh is likely to become the 26th largest economy in the world by 2030. Meanwhile, PricewaterhouseCoopers projected that Bangladesh has the potential to become the world's 23rd largest economy by 2050. To boost up such huge economic progress, the government has also initiated various mega infrastructure projects. The country's longest bridge over the Podda River, Dhaka Metro Rail, Pyra Deep Seaport, Bangabandhu Space Satellite, and the country's first nuclear power plant in Rupur. These are just few examples of such mega undertakings. 100 special economic zones will be established across the country in the next 15 years to produce goods and services worth $40 billion and to create 10 million jobs. Meanwhile, 28 high-tech parks will be constructed to bring ICT export to $5 billion by the year 2021, while creating 2 million jobs. To bring all the modern amenities to the rural people, the government is also implementing the gigantic scheme My Village, My Town, a major promise of its latest election manifesto. Bangladesh has a young, energetic population with 34% of its people aged 15 and below, while more than 65% is of working age. Cashing in on that demographic dividend, Bangladesh now aspires to become a major player in the upcoming fourth industrial revolution. To make this country ready for that transformation, the government has put special emphasis on quality education, technology, digitization, youth, and decent job creation in its latest budget, as it is determined to create jobs for 30 million people by the year 2030. Despite all that has been achieved, Bangladesh is not resting. In line with the dreams of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman,
we are aiming to become a prosperous, developed nation and one of the top 20 economies in the world by ताली बनती है भाई। 2041. अगर आप Come, ऐसे बड़ी चीज join सोचने us in में our सोच भी journey देते हो ना, as we बहुत ही march बड़ी बात beyond है the यार। dreams to हालांकि यहाँ emerge पे तो as सारी the जाहिर world's सी बात है, सबको next पता चला है, rising tiger. बहुत सारी चीज होते आई है और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द हो। सो वीडियो यहाँ पे हुई ख़त्म और ये बहुत ही बड़ी बात है यार। 2040 तक बांग्लादेश वर्ल्ड का 20वां ऐसा देश बनेगा जो सबसे बड़ी इकोनॉमी हो। सो ये बहुत ही ये इतना 8-10 मिनट का वीडियो ने पूरा हिस्ट्री बता दिया बांग्लादेश का और ऐसे ऐसे देश को सिखा दिया कि डेवलपमेंट करना कैसे और कैसे किया जाता है। सो ये फॉर्मूला दिखा दिया। सो मैंने कुछ चीज़ लिखी है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ऐसा सीरियस टॉपिक हो रहा है। क्योंकि कि देश कैसे उतना 1971 से लेके 2020 तक का जो जर्नी रहा है बांग्लादेश का, बहुत ही मुसीबतें भरी जर्नी था। सो उसके बावजूद भी बांग्लादेश इस सिचुएशन में ऐसे हिसाब से खड़े हैं कि वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग और बड़ा नंबर पे मार्जिन पे रेट करने वाली इकोनॉमी बूस्ट करने वाली देश बांग्लादेश है जो 8.1 की रेट से आगे जा रहा है। सो 2021 बाय 2021 आई होप इट्स विल बी 9.5% मार्जिन से बांग्लादेश आगे जाएगा। सो टोटली कंप्लीटली चेंज होने वाली है, जो लोगों का विज़न है टोटली चेंज होने वाली है। बस कुछ ही साल का बात है। सो ऐसे तरक्की करता जाए तो और अच्छा और भी बेहतर बनेगा। और 2011 में 51% था जो आपका जो एजुकेशन रेट, जो अभी 2018 तक 73% हो चुका है। सो एजुकेशन के लिए क्या क्या चीज़ किया है और किस हिसाब से एजुकेशन में इतना स्ट्रॉन्ग लिटरेसी रेट आया। सो अब बड़े बड़े देश ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को नेग्लिजेंसी करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो ह्यूमन एम्पावरमेंट का जो आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ बताई गई है कि जो लड़कियों को एजुकेशन देना ज़रूरी है इस सिचुएशन में, एजुकेटेड करना और जेंडर इक्वालिटी देना बहुत ही ज़रूरी है, जो बांग्लादेश साउथ एशिया में पहली बांग्लादेश ने किया है। सो 14,000 से ज़्यादा जो बांग्लादेश का पॉपुलेशन तकरीबन 16 से 70 करोड़ का है। सो उसमें 14,000 से ज़्यादा क्लिनिक है, छोटी छोटी क्लिनिक, बड़ी बड़ी को तो काउंट ही नहीं किया लेकिन छोटी छोटी है। उसके बाद जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, जो लिव लाइफ होती है लोगों का, वहाँ पे बाकी देशों में 62 से लेके 68 तक होती है और बांग्लादेश में 73% तक होती है। सो वहाँ पे लोग बाकी देशों के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा जीते हैं। सो जेंडर इक्वालिटी मैंने बता दिया आपको। और 2005 पे जीडीपी का ग्रोइंग रेट था आपका 2014 से 6.5। सो अभी का भी बहुत सारे ऐसे देश का ग्रोइंग रेट है 6.1, 5.0। सो उस टाइम पे बांग्लादेश 2014 में 6.5 के मार्जिन से जीडीपी ग्रोइंग रेट कर रहा था। सो उसके बाद तो 7.8, 7.8, 7.9। सो अभी रिसेंटली 8.1 के हिसाब से चल रहा है। सो आने वाले दिन में 9.5 होने वाली है। सो ये थी। और दूसरा ये इसको बताया जा रहा है वर्ल्ड का सबसे हाई रैंक परसेंटेज वाली जीडीपी रेट है बांग्लादेश का। आज तक कोई भी देश इतना मार्जिन से ग्रोथ नहीं किया था। सो पर कैपिटा इनकम में भी बांग्लादेश टॉप निकल चुका है। हालांकि श्रीलंका से साउथ एशिया में श्रीलंका टॉप है और श्रीलंका से आगे नहीं निकल पाया है कोई भी देश। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल को, भूटान को बांग्लादेश ने पीछे छोड़ दिया है। कि बांग्लादेश का अभी रिसेंटली का जो पर कैपिटा इनकम है 2173 है और इंडिया के 1881। सो यहाँ पे भी आगे निकल चुका है।
और एक्सपोर्ट के मामले में बांग्लादेश का जो एम है 40 बिलियन का है आने वाले दिन में, मोर देन 40 प्लस 40 बिलियन का है। सो एक्सपोर्ट 2009 में 15 बिलियन का कर रहा था, तो 19 में 35 बिलियन है। सो मोर एफर्ट दे रहे हैं एक्सपोर्ट करने में, ज़्यादा से ज़्यादा सामान वहीं पे बने। और सेकेंड लार्जेस्ट रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्टर है और मैन्युफैक्चरर भी है। सो इन्वेस्ट फॉरेन इन्वेस्ट किस हिसाब से किया जाता है, वहाँ पे गवर्नमेंट के स्कीम के हिसाब से वहाँ पे इन्वेस्ट होती है। सो गवर्नमेंट की स्कीम तो मैंने हर एक वीडियो में, मैं जितना भी बांग्लादेश की टॉपिक के ऊपर रिलेटेड होती है, सो मैं हर एक टाइम पे शेयर करता हूँ। सो आपको पता ही होगा, वहाँ पे जो भी इन्वेस्ट करने जाते हैं, जो भी प्लांट लगाने जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनी को, वहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है कोई भी चीज़ का, और आपको जगह देती है, कम बजट में लोगों को मुहिम कराती है, और जो रॉ मटेरियल है उसका टैक्स नहीं लगती है। सो इस वजह से बहुत सारे ऐसे कंपनी वहाँ पे काम करती है। हालांकि साउथ एशिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंट्री के लोग वहाँ पे तकरीबन भी 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे अभी जॉब कर रहे हैं रिसेंटली। सो ये बहुत ही बड़ी बात है। हालांकि देखा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब के, एरिया वाइज के हिसाब से पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ये बांग्लादेश से बहुत ही बड़ा है, लेकिन वहाँ पे लोग, वहाँ के लोग वहाँ बांग्लादेश में जाके जॉब कर रहे हैं। सो ये बहुत ही एक सरप्राइजिंग और बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड बात हो गई है इंडिया और पाकिस्तान को। हालांकि बांग्लादेश को एक गर्व की बात है ये। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट 3.6 बिलियन का है अभी रिसेंटली फ़िलहाल। सो आने वाले दिन में ऑब्वियसली ये इंक्रीज़ होगा, और प्राइवेट का भी उतना ही एफर्ट है। सो ये बहुत ही तरक्की के मामले में आगे निकलता जा रहा है। सो एग्रीकल्चर में 4th लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है, 3rd वेजिटेबल प्रोड्यूसर है, और फ्रेश फिश का प्रोड्यूस करने में 4था नंबर पे है बांग्लादेश। 94% इलेक्ट्रिक कवरेज है बांग्लादेश टोटली। सो ये एक मसीहा बनने का आने वाले दिन में। और डिजिटल के अंदर बांग्लादेश के बहुत सारे ऐसे चीज़ डिजिटलाइज करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं बांग्लादेश। और इसके लिए जैसे कि आपको आंकड़े देखेंगे तो मोबाइल यूजर्स में भी ग्रोथ हुई है। 161 मिलियन पीपल यूजिंग द मोबाइल फ़ोन्स, और इंटरनेट के मामले में 96.2 मिलियन पीपल इंटरनेट यूज़ करते हैं अभी के रिसेंटली 2018-19 के डेटा के हिसाब से। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2021 सेंचुरी का, जो 21वां सदी का सबसे बड़ा इकोनॉमी बूस्ट करने वाले देश बताया जा रहा है। जो इसका गोल्डमैन सैक्स ने इसका जो जिक्र किया है, और 2030 तक 50 तक ये 23rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी के आने वाले 30 सालों में बांग्लादेश का इकोनॉमी 23rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाली है। सो ये बहुत ही बड़ी बात है। वहाँ का एम ही इतना बड़ा है, तो ऑब्वियसली होगा ही होगा ये चीज़। सो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बने हैं। आपको मैं हर टाइम हर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ डिटेल्स बताता आया हूँ, और आपने देखा भी होगा। पद्मा ब्रिज हो गया, सबसे लंबा ब्रिज बन रहा है वहाँ का, और ढाका मेट्रो हो गया, और पावर प्लांट, बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है वहाँ पे, और सी पोर्ट बन रहा है जो एक्सपोर्ट में ज़्यादा मदद हो और ज़्यादा जीडीपी में, इकोनॉमी में बूस्ट आ जाए। और आपको बंगबंधु सैटेलाइट रिसेंटली बांग्लादेश ने 2018 में लॉन्च किया है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और ये बनाए हुए प्राइवेट कंपनी ने है, और स्पेस में भेजा भी प्राइवेट कंपनी ने भेजा है। सो ये बहुत ही बड़ी एक बात है बांग्लादेश के लिए। सो बहुत ही तगड़ी डिसीजन और बहुत ही बड़ी अचीवमेंट बोलता हूँ मैं इसको। और एक्सपोर्ट आने वाले दिन में मोर देन 40 बिलियंस होने वाली है। सो बांग्लादेश का अभी 2022 से मोर देन 40 बिलियन एक्सपोर्ट होती है। सो पहले के जो टाइम पे जो एक्सपोर्ट था 10 बिलियन ही था, जो रिसेंटली 2018-19 और अपकमिंग 2022 तक
40+ बिलियन की एक्सपोर्ट होने वाली है। सो ये सारी चीज़ें थी, जितना बताए उतना कम है। सो आने वाले दिन में और भी बेहतर करें, यही मेरा कामना और बहुत ही बेस्ट विशेष है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको और भी कुछ पता है और भी कुछ बताना चाहते हैं तो नीचे जाके कमेंट में ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप भी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।